students, I welcome you all to today's session. I hope all of you are doing perfect at your places. So today's topic is nutrition in animals. So now we will see how do different animals living in different parts of the world, how do they get their nutrition and where do they get it from. About the chapter. We have learned in the previous chapter that plants can prepare their own food by the process of photosynthesis, but animals cannot do so. Animals depend on plants for their food requirements. Different animals have different food habits and also different ways of taking food. From the simplest single-celled organism to the most complex multicellular organisms, each has unique adaptations to acquire. Process to utilize food. In this chapter, we will learn about the various ways in which animals obtain and process their food. तो पीछे के चैप्टर में आपने पढ़ा था किस तरीके से प्लांट्स अपना न्यूट्रिशन लेते हैं. अब हम देखेंगे कि एनिमल्स कहाँ से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, बिकॉज वी हैव डिफरेंट सेट ऑफ स्पीशीज ऑफ एनिमल्स. हर किसी की हैबिट्स अलग है, ईटिंग हैबिट्स, एंड द वे दे कंज्यूम द फूड ऑल्सो इट इज़ वेरी डिफरेंट. तो अलग अलग एनिमल्स की फूड रिक्वायरमेंट्स, न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स, द वे दे टेक देयर फूड, द places they take their food from is entirely different from one another. So now we will see how do plants get their food and what do they eat. So let's begin with what do animals eat. Different animals eat different food. On the basis of different food habits, animals are classified into three categories. Number one is herbivores. The animals that eat only plants and their products are called herbivores. For example, cow, goat, horse, etc. बिल्कुल बेसिक. जो एनिमल्स सिर्फ प्लांट्स ही कंज्यूम करते हैं, जैसे कि काउ, गोट, हॉर्स, कभी नॉन वेजिटेरियन या दूसरा एनिमल का मीट खाते हुए ये नहीं दिखाई देंगे. दे ओनली एंड ओनली ईट द प्लांट एंड द प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स. Hence, these animals are known as herbivores. Second category is carnivores. The animals that eat only flesh of other animals are called carnivores. For example, lion, tiger, wolf, etc. अब जैसे शेर है, पौधे तो खाएगा नहीं, दूसरे जानवरों का सिर्फ मांस ही कंज्यूम करता है. तो ऐसे जानवर जो सिर्फ मीट ही खाते हैं दूसरे एनिमल्स का नोन एज कार्निवोर्स. एंड द थर्ड कैटेगरी इज ऑफ ओमनिवोर्स, द मिक्सचर ऑफ द फर्स्ट टू. ये जो होते हैं ये दोनों ही कंज्यूम करते हैं. The animals that eat both plants and animals are called omnivores. For example, dog, bear, human beings, etc. Human beings भी इसी कैटेगरी में आते हैं. कुछ human beings होते हैं सिर्फ plant based खाना खाते हैं, but then we have human beings who also consume plant based diet and non vegetarian items. तो omnivores जो होते हैं दोनों ऊपर के mixture होते हैं. They are herbivores and carnivores. Now let's see what is holozoic nutrition. Holozoic nutrition is the process in which an organism consumes complex solid food particle and breaks it down into simpler form inside the body. तो holozoic nutrition का क्या फॉर्मूला होता है, इसमें जो organisms होते हैं ये solid food consume करते हैं. For example, human beings also. Solid food, complex food particle को consume करते हैं, body में जाके it breaks down into simpler form जो कि body उसको consume कर लेती है. Now it involves the following 5 steps. Number 1 being ingestion. It is the process of taking the food inside the mouth from the external environment either by sucking or swallowing. अब सबसे पहला होता है ingestion, यानी कि खाने का intake करना, या तो suck करके या फिर सीधे मुंह में लेकर. Then we have second which is digestion. It is the process of breaking down of complex food particles into simple soluble forms so that it can be absorbed by the body cells. Certain chemical substances and enzymes are involved in the process. अब दूसरा क्या है, इंजेक्शन हो चुका है, खाना आप अंदर ले चुके हो, अब बॉडी में आपके डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, दे ब्रेक डाउन दीज कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स इनटू सिंपलर फॉर्म. Then we have the third process which is absorption. It is the process in which the body cells take in the soluble nutrients from the digested food. अब खाना आपका डाइजेस्ट हो गया है सेकेंड प्रोसेस के बाद, अब आपकी बॉडी क्या करती है, जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स उनको अब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है. देन वी हैव असिमिलेशन. In this process, the body cells utilize the absorbed nutrients. अब nutrients absorb हो चुके हैं, अब body cells इनको utilize करती है जिससे आपको energy मिलती है, आपके जो worn out tissues होते हैं वो repair होते हैं, वो आपका assimilation में होता है. Then we have the last part which is the fifth, ingestion. It is the process of removal of waste product from the body. खाना आपका आप ingest कर चुके हो, digest कर चुके हो, absorb हो गया है, utilize हो गया है,
अब खाने का जो पार्ट आपके बॉडी को रिक्वायरमेंट नहीं है वो वेस्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में आपकी बॉडी से एक्सपेल हो जाता है, विच इज द फिफ्थ पार्ट विच इज इंजेशन। ये पूरे 5 पार्ट आपके होलोजोइक न्यूट्रिशन के स्टेप्स हैं। नाउ लेट्स सी द डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड बाय डिफरेंट एनिमल्स एंड विल बिगिन विद अमीबा। Amoeba engulfs food particles by projecting out its false feet called pseudopodia। तो अमीबा क्या करता है, engulf कर लेता है। ये अमीबा का स्ट्रक्चर होता है और ये कोई भी एक डेफिनेट स्ट्रक्चर अमीबा का नहीं होता है। ये अपने फॉल्स फीट, जिसको स्यूडोपोडिया कहा जाता है, जिसमें स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, पोडियो का मतलब होता है फीट। तो ये फॉल्स प्रोजेक्शंस को लेकर आता है और जितना भी खाना सराउंडिंग में होता है उसको अब्जॉर्ब कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल ये है, अगर यहाँ पे खाना होगा तो धीरे धीरे ये क्या करेगा, अपने फॉल्स फीट को एक्सटेंड करेगा और इस खाने को अपने अंदर एनगल्फ कर लेता है। दिस इज हाउ अमीबा गेट्स इट न्यूट्रिशन। और इसी तरीके से न्यूट्रिशन को अब्जॉर्ब करता है, फॉल्स फीट को पीछे लेके जाता है और वेस्ट पार्टिकल्स को बाहर एक्सपेल भी कर देता है। सेकेंड इज पैरामीशियम। It has a particular thread-like structures on its body called cilia. It sweeps the food particles by cilia which bend along water currents into a mouth-like structure. अब आपके पास दूसरा है पैरामीशियम। इसमें थ्रेड-like structures होते हैं which we often refer to as cilia. जैसे ही खाना आता है the cilia क्या करता है, उनको कैप्चर कर लेता है। ये पैरामीशियम का स्ट्रक्चर है। ये आपके थ्रेड-like स्ट्रक्चर इसके बाहर आपको प्रेजेंट मिलेंगे। फूड पार्टिकल आता है, अंदर की तरफ ये एनगल्फ कर लेते हैं या अपनी तरफ बेंड कर लेते हैं और माउथ लाइक स्ट्रक्चर इनका ओपन हो जाता है। थर्ड इज हाइड्रा। It has special stinging cells and tentacles. It entangles small aquatic animals from its tentacles and paralyzes the prey with the stinging cells, which is then pushed inside the mouth. Now we have the third category, which is of Hydra. Aquatic है ये, और ये क्या करता है, it has stinging cells और tentacles. Tentacles से ये prey को बिल्कुल entangle करके paralyze कर देता है कि अब prey move ही नहीं कर पाता, जो aquatic animals होते हैं। पैरालाइज करता है और उसके बाद अपने स्टिंगिंग सेल्स की मदद से उसको अपने माउथ या अपनी बॉडी के अंदर कंज्यूम कर लेता है। एंड देन वी हैव मस्कीटो एंड बटरफ्लाई। In these organisms, mouth parts are modified to form a feeding tube. It helps them to suck blood or nectar. अब मस्कीटो और बटरफ्लाई होते हैं, इनके जो माउथ पार्ट्स होते हैं इस तरीके से मॉडिफाई हो चुके होते हैं। मॉडिफाई करने का मतलब क्या होता है, पहले ओरिजिनल स्टेट में वैसे नहीं थे, धीरे धीरे मॉडिफाई हुए, चेंज हुए हैं कि वो फीडिंग ट्यूब्स की तरह बन जाते हैं। एंड इट हेल्प्स टू सक ब्लड एंड नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स। Then we have frog. It has a long and sticky tongue. It shoots out its sticky tongue to catch the prey and immediately withdraws the tongue into mouth. अब फ्रॉग के पास बहुत ही लॉन्ग, कभी आपने अगर नोटिस किया हो, जब फ्रॉग इंसेक्ट को कैच करता है बहुत लंबी जीभ उसकी निकलती है, स्टिकी होती है। जैसे ही वो जीभ इंसेक्ट पे पड़ती है, इंसेक्ट इनकी स्टिकी टंग पे चिपक जाते हैं, इट पुशेस बैक टुवर्ड्स इट्स माउथ और फिर अपना खाना ये कंज्यूम करते हैं। Next we have is duck. It has holes in its beak. With the help of its beak, it filters and catches tiny food particles floating nearby in water. अब डक होती है, इनके बीक में होल्स होते हैं। अब जैसे ही ये पानी के अंदर जाते हैं, फिशेस जाती हैं, जो फिशेस होती हैं वो इनकी होल में अटक जाती हैं और ये इनको कैच करके कंज्यूम कर लेती हैं। एंड देन वी हैव ह्यूमन बीइंग। Humans have 4 limbs which help them to put food into the mouth cavity. अब human beings के पास 4 limbs होते हैं, the fingers, इसको कंज्यूम करते हैं, खाना अपने मुंह तक पहुंचा लेते हैं। ह्यूमन बींग्स के बारे में बहुत ही डिस्क्रिप्टिव वे होता है खाने का और न्यूट्रिशन का, उसी के बारे में अब हम पढ़ेंगे। बट बिफोर दैट लेट्स एक्सप्लोर मोर। Starfish feed on animals covered by hard shells of calcium carbonate. After opening the shell, the starfish use its tube and feet and sucking to grab onto their prey. And once the prey is within the range, it pop out its stomach throughout its mouth to eat the soft animal inside the shell. The stomach then goes back into the body and the food is slowly digested. Starfish prey on a wide variety of organisms, including mollusks, क्रस्टेशियंस एंड इवन द स्टारफिश। अब स्टारफिश किस तरीके से करती हैं, ये एनिमल्स होती हैं, हार्ड शेल्स इनके आसपास होता है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, वेरी हार्ड स्ट्रक्चर। अब जैसे ही इनका शेल ओपन अप होता है, स्टारफिश अपने ट्यूब फीट को यूज करती हैं
सक्शन क्रिएट करती हैं और अपने प्रे को अपनी तरफ कंज्यूम कर लेती हैं। जैसे ही इनका स्टमक माउथ की तरफ जाता है, माउथ से अंदर की तरफ कंज्यूम कर लेती हैं। और स्टारफिश वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स को कंज्यूम करती हैं, इंक्लूडिंग मोलस्क्स, क्रस्टेशियंस और इवन स्टारफिश, यानी कि स्टारफिशेस को भी कंज्यूम करती हैं। नाउ लेट्स बिगिन विद द टॉपिक व्हिच इज डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। Digestion in human beings takes place outside the cell in an enclosed structure. Hence, digestion in humans is extracellular. It involves both mechanical and chemical processes. In chemical digestion, food is physically broken down into smaller particles by chewing and churning, while chemical digestion makes use of enzymes secreted by different organs of digestive tract, which are proteins that help in the simplification of food matter. अब human beings में जो digestion होता है, it happens in a different form in an enclosed structure, यानी कि आपकी body के अंदर होता है, आप ये देख नहीं सकते हो और feel भी नहीं कर सकते हो। अब ये केमिकल प्रोसेसेस होते हैं, आपके मैकेनिकल डाइजेशन होता है, इसमें आपके कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स, क्योंकि खाना जो आप खा रहे हो उसमें से जितने भी न्यूट्रिएंट्स है वो आपकी बॉडी एज इट इज नहीं कंज्यूम कर सकती है। तो वंस यू ईट इट, इंजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होता है, अब्जॉर्ब होता है, असिमिलेट होता है, फिर आपका क्या होता है, लास्ट पार्ट इजेशन हो जाता है। जो 5 तरीके आपने होलोजोइक न्यूट्रिशन के देखे, जो ह्यूमन बीइंग्स में देखा जाता है, और भी एनिमल्स है, ह्यूमन बीइंग्स में भी देखा जाता है। प्रॉपर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है ह्यूमन बीइंग्स में, सारे सेट ऑर्गन्स होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, जो कलेक्टिवली अलग अलग लेवल्स पे फंक्शन करते हैं इस पूरे प्रोसेस को टेक प्लेस करने के लिए। For example, you have different parts: mouth, pharynx, esophagus, stomach, then you have liver, pancreas, small intestine, large intestine, and lastly you have rectum and anus. ये सारे जो 5 parts थे आपके होलोजोइक न्यूट्रिशन के, ये सारी चीजें, ये सारे ऑर्गन्स उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। The digestive system of human beings consists of the 2 main parts. Number 1 is the alimentary canal, and then we have the digestive glands. Let's begin with the alimentary canal. Alimentary canal, also called digestive tract, it is a long, continuous and muscular tube consisting of organs of a varying diameter and shape. Its length in adults is about 9 to 10 meters. It is opened at both ends and consists of the following parts. अब alimentary canal में आपका क्या होता है? It is also known as the digestive tract. लंबा होता है, कंटिन्यूस होता है, मस्कुलर होता है। कंटिन्यूस मतलब बीच में कोई ब्रेकिंग नहीं है, एक ही साथ है, वन पीस में है, अलग अलग डायमीटर्स में होता है, और एडल्ट्स में ही ऑन एन एवरेज 9 से 10 मीटर का होता है। नाउ लेट्स सी एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या चीजें होती हैं। नंबर 1 इज द माउथ। फर्स्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इज द माउथ. Mouth is the opening of alimentary canal. Food is taken in or ingested into the mouth. It is also known as oral cavity. It consists of tongue and teeth. अब सबसे पहला माउथ आता है, ओपनिंग होती है जहां से आपका खाना आपकी बॉडी के अंदर जाता है। बिफोर एंटरिंग इनसाइड योर बॉडी आप इसी से च्यू करते हो, चर्न करते हो, जिसमें आपका टंग और टीथ की मदद से आप ये करते हो। एंड योर माउथ इज ऑल्सो नोन एज द ओरल कैविटी, जिसमें आपके टीथ एंड योर टंग इज इन्वॉल्व. Then you have the tongue. Tongue is a muscular organ. It is made up of many groups of muscles which make it very strong and flexible. It is attracted at the back to the bottom of the mouth. The front part of the tongue is very flexible and can move around, working with the teeth to create different types of words when we speak. This part also helps us to eat by moving food around the mouth while chewing. अब आपका tongue है completely muscular, कोई bones इसमें present नहीं होते हैं. There are a group of different types of muscles which make it very strong and flexible. This not only helps you to eat food or chew food, but it also helps you to talk, speak. जीभ अगर नहीं ढंग से आपकी प्रॉपर नहीं होगी या जीभ में चोट भी लग जाती है, दाने तक हो जाते हैं, तो भी आप ढंग से नहीं बोल पाते हो. सो टंग इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट जस्ट फॉर हैविंग योर फूड बट ऑल्सो फॉर स्पीकिंग एंड टॉकिंग. नाउ लेट्स एक्सप्लोर मोर. The top of the tongue is rough and bumpy while the underside is very smooth. This is because the top of the tongue is covered with a layer of bumps called papillae, and papillae grip the food and move it around while chewing. This contains taste buds which help us to taste whatever we eat. People are usually born with about 10,000 taste buds, but as the age grows, some of these taste buds die. Hence, an old person may have about 5,000 taste buds. Some typical tastes that the taste buds can detect are sweet, sour, salty and bitter. In addition to identifying taste, the tongue also helps us in the following ways.
It helps us to talk. It moves food around our mouth when we chew it, and it mixes saliva with food while chewing and helps us swallow the chewed फूड। तो आपकी जो टंग होती है विच इज अ मस्कुलर स्ट्रक्चर, अपर पार्ट आप फील करोगे तो वो आपकी बम्पी होती है, रफ होती है, वाइल दी अंडर साइड ऑफ द टंग इज सॉफ्ट। रीजन कि ऊपर वाला पार्ट जो होता है उसमें आप खाना डालते हो, अगर वो रफ नहीं होगा तो खाना आप माउथ पे बहुत देर तक नहीं रख पाओगे और वो सीधे अंदर की तरफ फिसल जाएगा। तो वो इसीलिए हेल्प करता है, इसीलिए वो बम्पी होता है। जैसे आप पैदा होते हो, छोटे बच्चे में 10,000 टेस्ट बड्स होते हैं एक टंग में। जैसे जैसे एज ग्रो करती है 5,000 ये बच जाते हैं। जो मेन टेस्ट आप सेंस कर सकते हो आपकी टंग की मदद से, इट इज स्वीट, सार, सॉल्टी एंड बिटर। जो आपके टंग का टिप होता है वो सिर्फ और सिर्फ स्वीट टेस्ट ही सेंस कर सकता है। टिप जो होता है कभी सॉल्टी चीज नहीं टेस्ट कर सकता है, ना उसको सेंसेशन होती है। अपार्ट फ्रॉम द टेस्टिंग थिंग एंड एवरीथिंग, बात करने के लिए, च्यू करने के लिए, सलाइवा रिलीज करने के लिए भी टंग की जरूरत होती है। नाउ लेट्स डू एन एक्टिविटी। Take lemon juice, bitter gourd juice, sugar solution and a salt solution. With the help of cotton swabs, put few drops of each solution in different parts of your tongue. Identify the areas where you could feel each of these tastes. You will observe that the sweet and salty taste buds are present on the tip of the tongue, and about halfway back along its sides, sour taste buds are present. All the way back along the sides and our bitter taste buds are more dense at the back of the tongue. अब आपको क्या करना है, लेमन जूस लेना है, बिटर गॉर्ड जूस लेना है, शुगर सोल्यूशन लेना है, सॉल्ट सोल्यूशन लेना है। चारों के चारों टेस्ट आपके अलग अलग हैं। अब आपको क्या करना है, आपको आपकी टंग के अलग अलग पार्ट्स को यूज करना है इन्हें टेस्ट करने के लिए। मेंशन भी करा गया है, लेबल भी कर रखा है। जो ये टिप होगा, बिल्कुल जो आपका टिप होता है टंग का एकदम आगे, वो सिर्फ मीठी मीठी चीज़ ही आपको टेस्ट कर सकता है। नमक में आपको टेस्ट नहीं आएगा अगर आप बिल्कुल एग्जैक्ट टिप पे टच करोगे। अब स्वीट से थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाओगे तो आपको सॉल्टी चीज़ें फील होंगी। उसी डायरेक्शन में आप थोड़ा पीछे जाओगे तो सावर, खट्टी, और बिल्कुल पीछे जो आपका इधर का साइड होता है वहाँ पर आपको बिटर, कड़वी चीज़ें फील होती हैं। तो ये अलग अलग टेस्ट बड्स है और आपको इन्हीं सारी लोकेशंस पे इन टेस्ट का पता भी चलता है। Teeth, another part of the alimentary canal. Teeth are hard, bone-like structures present in the oral cavity. Their main function is to break the complex food particles into smaller pieces so that they can be digested well. Along with this, they help us to speak clearly and also give shape to our face. The total number of teeth present in an organism is termed as dentition. अब आपका क्या है, टीथ आता है, स्ट्रॉन्ग होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, कैल्शियम से बना होता है, बहुत ही हार्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, बोन लाइक स्ट्रक्चर्स आपकी ओरल कैविटी में। अब ये क्या किस चीज़ में मदद करते हैं, खाने को ब्रेक करने में मदद करते हैं, क्योंकि एज इट इज स्वॉलो करोगे तो वो भी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी। तो टंग ने तो सलाइवा प्रोवाइड कराया, खाने को सॉफ्ट बनाया, अब इस सॉफ्ट खाने को च्यू करने में टीथ ने हेल्प करी। इसके अलावा ढंग से बोलने में हेल्प करते हैं। रीज़न यही होता है, बिल्कुल छोटे बच्चे जिनके दांत नहीं होते और बिल्कुल बुजुर्ग जिनके दांत नहीं होते, दोनों ही जब बोलते हैं तो ढंग से उनकी बातें समझ में नहीं आती हैं ज़्यादातर, क्योंकि उनके पास दांत नहीं होते हैं। हेंस बोलने के लिए भी टीथ की ज़रूरत होती है। प्लस आपके फेस का जो स्ट्रक्चर होता है, एक अपराइट स्ट्रक्चर जो आपके फेस का होता है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द टीथ। दैट इज़ वाई जिनके पास दांत नहीं होते हैं, जो बहुत एजड होते हैं या बहुत छोटे बच्चे होते हैं, उनके लिप्स का भी कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, फेस भी थोड़ा सा झूला हुआ होता है। Humans have two sets of teeth during their lifetime. Number one is the primary teeth. Primary teeth are also known as deciduous or milk or baby teeth. These are 20 in number. These teeth fall off at the age between 6 to 8 years and a new set of teeth called permanent teeth grows. तो पहला है primary teeth, इसे deciduous, milky या baby teeth भी बोला जाता है। deciduous का मतलब जो जल्दी झड़ जाते हैं, milky मतलब दूध के दांत या फिर बच्चों के दांत। ये धीरे धीरे झड़ना शुरू करते हैं आपके 6 से 8 साल या 10 साल के बीच में, और उसके बाद जो नए सेट ऑफ टीथ निकलते हैं, दे आर सेकेंड वन विच आर नोन एज permanent teeth. These may last throughout life or fall off during old age. An adult human has 32 teeth which are used to bite, tear and reduce the food into smaller particles. If these teeth are fallen,
नो न्यू सेट ऑफ टीथ ग्रोज। अब ये आपके लास्ट सेट होते हैं, जैसे ही परमानेंट टीथ ग्रो होते हैं बहुत ध्यान इनका रखना पड़ता है। अगर खराब होके सड़ गए, गिर गए तो नए दांत लगाने पड़ेंगे, दूसरे ग्रो नहीं होंगे। स्मॉलर पार्टिकल्स को कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं। ये आपके जो फूड पार्टिकल्स होते हैं पूरे लाइफ टाइम आपके रहते हैं। बहुत ज़्यादा बुजुर्ग आप हो गए तो झड़ना शुरू कर देते हैं क्योंकि आपके बहुत वीकनेस आ जाती है। एंड देन अगर ये दांत झड़े तो नए दांत अपने आप आपकी बॉडी ग्रो नहीं करती है। Now let's see, we have different types of teeth. An adult human has 4 types of teeth. Number 1 is incisor. The teeth in the front are called incisors. They are used for biting food. These are 4 in each jaw and flat in shape. अब सबसे पहले आपका आता है incisor, दोनों जॉ में, अपर जॉ और लोअर जॉ में। ये चार आपके ये प्रेजेंट होते हैं एंड ये खाने को बाइट करने के लिए यूज आते हैं। Then we have the canines. On either side of the incisors are sharp pointed teeth called canines. These are used to tear the food. These are 2 in each jaw. अब बिल्कुल incisors के साइड में 2 पैर आते हैं आपके, एक पैर आता है आपका दोनों के दोनों जॉ में। canines का शार्प होते हैं और ये खाने को टीयर करने में मदद करते हैं। Then we have the premolars. Behind the canines are the premolars. These are flat and rigid with small grooves. These are 4 in each jaw and used for crushing and cracking the food. अब आपके premolars आते हैं canines के पीछे। ये जो होते हैं फ्लैट होते हैं, रिज्ड होते हैं स्मॉल ग्रूव्स के साथ, एंड दे हेल्प इन क्रशिंग एंड क्रैकिंग द फूड। एंड देन लास्टली वी हैव द मोलर्स. Behind the premolars are the molars. These are flat and wide. These are 6 in each jaw and used for grinding and chewing the food. अब आपके आते हैं molars जो premolars से बाद में आते हैं, फ्लैट होते हैं, वाइड होते हैं। दे आर 6 इन ईच जॉ, यानी कि 6 ऊपर वाले जॉ में, 6 नीचे वाले जॉ में। एंड दे हेल्प इन ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग द फूड। जो खाना आप खाते हो, बाइट करते हो, फिर आपका टीयर होता है, यहाँ आते आते आप उसको क्रश करना शुरू करते हो। और ये जो दोनों पार्ट होते हैं, आप देखोगे, नोटिस भी करोगे, खाना खाते हुए यही दोनों पार्ट होते हैं जो आपके मैक्सिमम टाइम एंगेज्ड होते हैं। एंड दीज आर द मोलर्स विच हेल्प यू इन क्रशिंग योर फूड। नाउ लेट्स फिगर आउट What is wisdom tooth? तो wisdom tooth आपके जो मोलर्स होते हैं, आपके 2 मोलर्स यानी कि 2 ऊपर 2 नीचे, ये wisdom tooth जिसे हिंदी में अक्ल की दाढ़ भी बोला जाता है, ये धीरे धीरे आते हैं। 18 साल से पहले भी आ सकते हैं, 18 साल के बाद बहुत कम चांसेस होते हैं, बट दे कैन ग्रो आफ्टर द एज ऑफ 18 ऑल्सो। दे आर नॉट योर परमानेंट टीथ, और ये साथ में नहीं आते हैं, ये बाद में धीरे धीरे ग्रो करते हैं। नाउ लेट्स एक्सप्लोर मोर। A tooth print is a unique dental impression of mold of an individual's teeth, similar to a fingerprint. Just like fingerprints, tooth prints are used for identification purpose in forensic investigations. अब जैसे fingerprints का यूज करा जाता है, यूनिक होते हैं, हर एक बंदे का फिंगरप्रिंट किसी और से मैच नहीं करता है। सिमिलरली टूथ प्रिंट भी दूसरे बंदे से मैच नहीं करता है। तो बहुत सारे फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशंस जो होते हैं, लीगल प्रोसेस होते हैं, वहाँ पे टूथ प्रिंट्स को भी यूज करा जाता है। Activity. Ask one of your friends to open his or her mouth. Count the number of each type of teeth in the upper and the lower jaw and complete the table given below. अब ये एक्टिविटी आपको खुद से करनी है। आपको अपने फ्रेंड को बोलना है अपना माउथ ओपन करेगा। Incisors, canines, premolars and molars. आपको लिखना है number of teeth in the lower jaw, यानी कि incisors, canines, premolars, molars, ये चारों ऊपर वाले लोअर वाले जॉ में कितने हैं और अपर वाले जॉ में कितने हैं, और वो यहाँ पर आपको लिख देना है। Now let's move ahead with the topic, and which is tooth decay. Tooth decay is a common dental disease. This disease destroys the tooth's structure and produces holes called cavities. Our mouth contains bacteria which act upon food particles stuck in the space between 2 teeth and forms a sticky film on teeth called plaque. These bacteria break down the sugars present in the food and release acids which gradually damage the tooth enamel, hard covering on the teeth. अब टूथ डीके समथिंग विच इज़ वेरी कॉमन ओरल कैविटी में, या डेंटल डिजीज़ ये बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। बहुत सारी रीजंस की वजह से ये हो सकती है, बिकॉज हमारे माउथ में बैक्टीरियाज ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए बोलते हैं 2 टाइम ब्रश करने के लिए। रीज़न ये होता है कि रात में जब आप खाना खाते हो, रात भर आपका मुंह बंद रहता है, अगर आपके दांतों के बीच में कोई भी खाने का पार्टिकल फंसा होगा तो ये बैक्टीरियाज उसके ऊपर एक्ट अपॉन करते हैं एंड दे टेंड टू डीके योर टीथ। आपके दांतों को ये धीरे धीरे करके सड़ाना, खराब करना शुरू कर देते हैं, और आपके दांतों में एक प्लाक लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है एंड आपका जो टूथ एनामल होता है वो भी धीरे धीरे खराब होने लगता है।
If this is left untreated, it causes a severe toothache and in extreme cases results in tooth loss. The following points should be taken care to prevent tooth decay and to maintain dental hygiene. इससे पहले अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम किसी को भी आती है, हल्की फुल्की भी, हल्का सा भी दांत में दर्द होता है या कुछ भी प्रॉब्लम होती है, अगर इसको ट्रीट नहीं किया गया तो कुछ केसेस में देखा जाता है बहुत ज़्यादा दांत में दर्द आ जाता है, जिससे बुखार तक भी आ जाता है, बहुत गंदा दर्द आता है या फिर इवन दांत झड़ भी जाते हैं. तो इट्स बेटर कि या तो आप अगर हाइजीन आपने मेंटेन करी है तो बहुत ही अच्छी बात है, बट अगर इस पोजीशन तक आप सिचुएशन तक आ गए हो कि आपके दांतों में दर्द होना शुरू हो गया है, सो प्लीज विजिट अ डॉक्टर एज सून एज पॉसिबल. नाउ लेट्स सी द पॉइंट डेंटल हाइजीन को मेंटेन करने के लिए. Avoid eating too much sticky and sugary items such as chocolates, sweets, cold drinks, etc. Eat food items rich in calcium and phosphorus. Clean your teeth with a brush or Dentin and dental floss at least twice a day. Rinse your mouth with saline water after every meal. Never put dirty fingers or any unwashed object in the mouth. जितने भी शुगरी स्टिकी फूड आइटम्स होते हैं कम से कम कंज्यूम करिए. और रात में तो मीठा खाने के लिए बोला भी इसलिए मना किया जाता है क्योंकि बॉडी के लिए तो वैसे ही अच्छा नहीं है, और अगर आपने रात को मीठा खा लिया है और ब्रश नहीं करा है तो उससे तो दांत खराब होंगे ही होंगे. तो ये आपको नहीं करना है. ऐसे फूड आइटम्स खाने हैं जिसमें कैल्शियम ज़्यादा हो, फोस्फोरस ज़्यादा हो, क्योंकि आपकी दांतों के लिए वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है कि जितना आप ये कैल्शियम और फोस्फोरस रिच फूड खाओगे आपके दांत उतने ही मजबूत रहेंगे. दांतों को डेली 2 बार कम से कम ब्रश से और डेंटल फ्लॉस आता है उससे क्लीन करना है, क्योंकि डेंटल फ्लॉस अगर आप यूज़ नहीं करोगे तो सिर्फ ब्रश से आपके दांतों के बीच में जो फंसा हुआ जो भी फूड पार्टिकल है वो कभी कभी नहीं निकलता है, जिसके लिए डेंटल फ्लॉस आपको यूज़ करना चाहिए. सलाइन वाटर से आपके दांतों को आपको या अपने मुंह को रिंस करना चाहिए 2 बार कम से कम. और गंदी फिंगर्स या ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो गंदे हैं आपको अपने मुंह में नहीं डालना है. और आफ्टर एवरी मील आपको अपने माउथ को रिंस करना ही चाहिए. सो दीज आर सम डेंटल हाइजीन थिंग्स विच यू शुड फॉलो ताकि आपकी ओरल हाइजीन मेंटेन रहे. Now let's see what is saliva and what does it help in. Our mouth has salivary glands that secrete a water-like liquid called saliva. Saliva contains an enzyme called amylase which break down the insoluble starch of the food into soluble sugar. This is the initiation of digestion. This change can be easily felt when a piece of chapati or bread is chewed. It slowly begins to taste sweet, which means that the starch of chapati is being converted into sugar. Starch is partially digested sugar in mouth. The combined action of teeth and saliva makes the food moist and soft so that it is easy to swallow. अब आपके माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं जो सलाइवा जो एक लिक्विड होता है उसको सिक्रीट करते हैं. अब ये सिर्फ खाने को सॉफ्टन करने में हेल्प नहीं करता है. कभी आप चपाती खाओगे उसमें जो आपका ग्लूकोज होता है, अब आपके सलाइवरी ग्लैंड्स में स्टार्च प्रेजेंट होता है जो आपके खाने के स्टार्च को या ग्लूकोज को सॉल्युबल शुगर में कन्वर्ट कर देता है. रोटी को आप धीरे धीरे चबाओगे तो थोड़ी देर में आपको रोटी मीठी लगने लगती है. क्यों लगने लगती है? क्योंकि आपकी जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं वो आपके खाने के इनसॉल्युबल स्टार्च को सॉल्युबल शुगर में कन्वर्ट कर देते हैं बिकॉज ऑफ द एंजाइम दैट द सलाइवरी ग्लैंड्स और सलाइवा हैज व्हिच इज अमाइलेज. ये करता है सबसे पहली बात तो, और दूसरा सबको पता है कि खाने को मॉइस्ट कर देता है ताकि वो स्वॉलो करने के लिए इजी हो जाए. दिस इज द फंक्शन ऑफ सलाइवा. नाउ लेट्स एक्सप्लोर मोर. An adult secretes about 1.5 liters saliva a day. तो एक दिन में एक नॉर्मल हेल्दी एडल्ट 1.5 लीटर तक सलाइवा सिक्रीट करता है. फिगर आउट What are the different types of salivary gland present in humans? तो humans में different types of salivary glands present होते हैं. One being आपके mouth में जो saliva को secrete करता है and helps to moisten the food, and it also helps in converting the insoluble starch into the soluble sugars. Now let's experiment. Objective: to show that effect of saliva on starch. Materials required: 2 test tubes, starch powder, iodine solution, water and dropper. Procedure: take both the test tubes and mark them A and B. Half fill the test tube A with water and mix a pinch of starch powder to it in order to make the starch solution. Pour half of the starch solution from test tube A to test tube B. Number 4. Put 3 ml of saliva from your mouth into test tube B and mix it by shaking. Number 5. After 5 to 6 minutes, add a few drops of iodine solution to each of the test tubes.
Observation: in test tube A, change in color is observed. The solution changes to blue-black color. In test tube B, no change in color is observed. And conclusion is, since test tube A has starch solution, hence by adding iodine solution, the color of the solution is changed into blue-black. Test tube B also has starch solution, but it changes into sugar by the action of enzymes in saliva, hence no change in color is observed. तो इस एक्टिविटी में आपको क्या पता चलेगा कि जिस भी चीज में आपका स्टार्च प्रेजेंट होता है, द मोमेंट यू ऐड द आयोडीन सोल्यूशन टू इट, इट विल कन्वर्ट इनटू ब्लू ब्लैक कलर. अब आपको सोल्यूशंस लेने हैं, एक आपको ऐसा सोल्यूशन लेना है, दो टेस्ट ट्यूब्स आपको लेने हैं, टेस्ट ट्यूब ए, टेस्ट ट्यूब बी. टेस्ट ट्यूब ए में आपको 3 ml ऑफ सलाइवा डालना है अपने माउथ से, टेस्ट ट्यूब बी में भी उसको आपको मिक्स करना है. अब जिस टेस्ट ट्यूब में आपके पास ऑलरेडी स्टार्च प्रेजेंट होगा जिस सोल्यूशन में, उसमें जब आप सलाइवा मिक्स करोगे, बिकॉज सलाइवा में आपका एंजाइम है एमाइलेज, तो वो जैसे ही स्टार्च के साथ मिक्स होगा वो कलर को ब्लू ब्लैक कर देगा. बट दूसरे वाले सोल्यूशन में जिसमें स्टार्च प्रेजेंट नहीं है, टेस्ट ट्यूब बी में, उसमें आप सलाइवा डालोगे, जितना भी आप मिक्स कर लो उसका कलर चेंज नहीं होगा, बिकॉज इट डज नॉट कंटेन स्टार्च. नाउ लेट्स सी द एसोफेगस और फूड पाइप. When food is chewed and partially digested in the mouth cavity, then it is pushed into the pharynx. From pharynx, food passes to a long tubular esophagus that runs along the neck and chest. Muscles in the wall of the esophagus work in a coordinated manner by contractions and relaxations to push food and liquid down into the stomach. This movement of the wall muscles of the esophagus is called peristalsis. No digestion takes place here. अब आपका आता है esophagus, जिसे फूड पाइप भी बोला जाता है. एक सिंगल सा स्ट्रक्चर होता है, खाना आपका जैसे ही माउथ कैविटी से जाता है, इट पुशेस इनटू द pharynx which is here. ये खाने को पास करता है लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में which is the esophagus. ये आपका पूरा का पूरा नेक से चेस्ट तक रन करता है, मस्कुलर वॉल होती है ये, और ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करती है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, और इस फॉर्म में आपके खाने को, लिक्विड को, या जो भी आप कंज्यूम कर रहे हो उसको आपके स्टमक तक पहुंचाती है. एंड दिस मूवमेंट ऑफ द मसल्स व्हिच एसोफेगस मेक्स इज नोन एज पेरिस्टालिसिस. नाउ लेट्स एक्सप्लोर मोर. Sometimes we feel choking while eating. Why is this so? This is because of the entering of food particles to the windpipe. This may happen particularly while eating in hurry or laughing or talking while eating. Inside our throat, food pipe, esophagus and windpipe, trachea share a common passage. When food is being swallowed, a flap-like valve, epiglottis, closes the passage of the windpipe and guides the food into the food pipe. However, talking or laughing while eating does not allow the valve to close properly and food particles could enter the windpipe and cause choking. अब खाना खाते हुए बात करने के लिए इसी रीजन से मना किया जाता है, क्योंकि फूड पाइप जो एसोफेगस है एंड द ट्रेकिया व्हिच इज द विंड पाइप, इनका पैसेज एक ही होता है. तो खाना जब आप खाते हो, जैसे ही आप खाना अंदर की तरफ करते हो, एक वॉल्व होता है व्हिच इज द एपिग्लॉटिस. वो एपिग्लॉटिस ओपन अप होता है और वो विंड पाइप के रास्ते में आके बंद हो जाता है, जिसकी वजह से खाने को रास्ता मिलता है सीधे सीधे फूड पाइप में जाने का. अब जब आप बात करते हो खाना खाते हुए या बहुत जोर से हंसते हो, तो ये वॉल्व जो होती है एपिग्लॉटिस, ये ढंग से बंद नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से खाना विंड पाइप में जाने के भी चांसेस हो जाते हैं या एंटर कर जाते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी खांसी आ जाती है खाते हुए, चोकिंग हो जाती है. इट हैपेंस बिकॉज ऑफ दिस. तो खाना खाते हुए सिर्फ खाना खाइए, बात करने के लिए पूरा दिन बचा है. खाना खाते हुए सिर्फ खाना. Now we have the stomach. The food passes through the food pipe into the stomach in just 10 seconds. Stomach is a J-shaped, thick-walled pouch located on the left side of the abdomen. It is the widest part of the alimentary canal and is about 30 centimeters long. The capacity of the stomach of an adult is about 2 liters. The inner lining of the stomach secretes digestive enzymes and hydrochloric acid to help in the food digestion. A mucus layer protects the lining of the stomach from the acid. The acid kills many bacteria that enter along with the food and makes the medium in the stomach less acidic. The digestive juices break down the proteins into simpler substances, amino acids. Thus, food gets partially digested and is converted into a thick liquid called chyme. अब आपका फूड जैसे ही आपका फूड पाइप से स्टमक तक जाता है, 10 सेकंड के आसपास ये आपके पेट तक पहुंच जाता है. जे शेप्ड ऑर्गन ये होता है इस तरीके से. एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बड़ा ऑर्गन होता है, 30 सेंटीमीटर्स लॉन्ग होता है, and it has the capacity to almost consume 2 liters of your food.
इनर लाइनिंग में अलग अलग डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, एंजाइम्स होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो कि फूड डाइजेशन में इनको हेल्प करता है, म्यूकस की लेयर होती है विच प्रोटेक्ट्स द स्टमक फ्रॉम द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या फिर कोई भी एसिडिक मीडियम होता है उससे पेट को बचा के रखता है। अब ये जो डाइजेस्टिव जूसेस पेट में प्रेजेंट होते हैं, दे हेल्प डाउन टू कन्वर्ट द फूड पार्टिकल्स इनटू सिंपलर फॉर्म, ताकि उसमें से प्रोटीन्स और सिंपलर सब्सटेंसेस मिल सके विच वी ऑफ्टन रेफर टू एज अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड से आपको एनर्जी मिलती है, आपकी बॉडी के लिए अलग अलग चीज़ों के लिए रिक्वायरमेंट होता है, एंड देन द फूड गेट्स पार्शली डाइजेस्टेड। पार्शली अभी भी यहाँ पर ये कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं हुआ है, पार्शली डाइजेस्ट हुआ है इनटू अ थिक लिक्विड, और इस थिक लिक्विड को बोलते हैं काइम। The stomach carries 3 mechanical tasks. Number 1, the muscles of the upper part of the stomach relaxes to accept large quantities of the swallowed food and liquid materials. अब ये फूड पाइप की तरफ से ऊपर की तरफ जो आपका स्टमक का रेंज आ रहा है, ये आपका बहुत अच्छे से रिलैक्स हो जाता है ताकि जितना भी खाना है वो आपके पेट में आ सके। ये पहली चीज पेट करता है। Second, the food materials are then mixed with the digestive juices in the lower part of the stomach by the action of its muscles. उसके बाद ये जो आपका लोअर पार्ट आता है मसल का, स्टमक का बीच में, यहाँ पर बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, खाने के साथ ये मिक्सअप होते हैं। Then happens the third part, which is finally the stomach empties all its contents slowly into the small intestine. फिर क्या होता है, यहाँ से आपका खाना, ये जो लोअर पार्ट होता है आपका स्टमक का, जो कि फाइनली आपका इंटेस्टाइन्स के साथ जुड़ा हुआ होता है, पेट अपने आप को पूरा खाली कर देता है, जो काइम बनता है उस काइम को स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचा देता है। ये 3 मैकेनिज्म स्टमक फॉलो करता है। नाउ लेट्स एक्सप्लोर मोर। The discovery of working of stomach was an accidental discovery in 1822. A man named Alexis Saint Martin was badly hit by a shotgun. The bullet had seriously damaged the chest wall and made a hole in his stomach. He was brought to an American Army doctor, William Beaumont. The doctor saved the patient, but he could not close the hole properly and left it bandaged. Beaumont took it as a great opportunity to see inside the stomach throughout the hole. He made some wonderful observations. Beaumont found the stomach was churning food. Its wall secreted a fluid which could digest the food. He also observed that the end of the stomach opens into the intestine only after the digestion of the food inside the stomach is completed. अब ये जो पूरा वर्किंग आपको मैकेनिज्म बताया गया है स्टमक के अंदर का, इट वाज एक्चुअली एन एक्सीडेंटल थ्योरी, कोई इसके ऊपर बैठ के एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहा था। एक इंसान था जिसका नाम था एलेक्सिस सेंट मार्टिन। ही वाज बैडली शॉट बाय अ गन। डॉक्टर के पास ये गए, डॉक्टर ने भी जब इनको पूरा मरम पट्टी करी तो एक होल बीच में था जिसको उन्होंने अनट्रीटेड छोड़ दिया, सिर्फ बैंडेज लगाया, और उसी होल से ही वाज सीइंग इनसाइड द स्टमक कि एक्चुअल में क्या हो रहा है, एंड दैट इज हाउ ही डिस्कवर्ड कि स्टमक के अंदर ये 3 अलग अलग लेवल्स पे काम होता है। एंडिंग जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ मिली हुई है, और जब तक पेट में कंप्लीटली खाना डाइजेस्ट नहीं होता है तब तक खाना स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन तक नहीं पहुंचता है। तो दिस इज एन एक्सीडेंटल थ्योरी। फिगर आउट। It is said that skipping meals may cause acidity, and why is this so? अब अगर आप खाना मिस कर देते हो या स्किप कर देते हो, उससे एसिडिटी हो जाती है। रीजन क्या होता है, आपकी जो स्टमक होता है उसमें टाइम टू टाइम जो एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो रिलीज होता रहता है। तो अगर खाना मिलता है तो बहुत बढ़िया डाइजेस्ट होता रहेगा, नहीं मिलता है तो यही हाइड्रोक्लोरिक एसिड वॉल्स पे सीक्रीट हो जाता है, जिसकी वजह से आपको एसिडिटी फील हो जाती है। सो नेवर स्किप योर मील्स, टाइम टू टाइम अपना खाना सुबह दिन शाम का खाते रहिए। नेक्स्ट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। Small intestine is also known as the small bowel. It is the longest portion of the digestive tract and is more than 6 to 7 meter long. It is made up of duodenum, jejunum and ileum. Most digestion takes place in the upper part of the small intestine, that is duodenum. Here food is mixed with 2 important secretions from liver and pancreas. अब small intestine आपका आता है, small bowel like movement होता है, ये आपका small intestine का पूरा structure है, जिसमें आपके 3 और structures आते हैं, which is duodenum, jejunum and ileum. अब इसी duodenum में क्या होता है, मेन काम आपका स्टार्ट होता है, which is the digestion. अब ये digestion कैसा होता है, food is mixed with 2 important secretions from लिवर एंड पैंक्रियाज। लिवर से आता है बाइल जूस, पैंक्रिया से आता है पैंक्रियाटिक जूस।
Now we have some enzymes are also produced by the walls of small intestine. As the chyme enters into small intestine, it is mixed with a variety of intestinal juices which completes the digestion of all the complex components present in the food. अब कुछ enzymes आपके small intestine से भी release होते हैं, which we call it as intestinal juices, और इन्हीं intestinal juices से जो complex components होते हैं आपके खाने में वो और भी ज़्यादा soften up हो जाते हैं, digest हो जाते हैं. The wall of small intestine has thousands of tiny finger-like projections called villi, which increase the surface area for absorption of nutrients. Each villi has fine blood capillaries close to its surface. The nutrients pass through the intestinal walls into the blood through these capillaries by the process of diffusion. Blood carries the absorbed substances to different organs where they get utilized to build proteins and other complex substances. This is called assimilation. अब आपके जो intestines होते हैं उसमें बहुत ही fine thread hair like structures होते हैं which we call it as villi, और ये villi क्या करते हैं, absorption area को बढ़ा देते हैं, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था holozoic nutrition के तीसरे पार्ट में कि आपका जो पूरा का पूरा खाना होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, अब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है. तो विलाई लाइक स्ट्रक्चर से क्या होता है, अब्जॉर्प्शन एरिया बढ़ जाता है, न्यूट्रिएंट्स स्मॉल इंटेस्टाइन ज़्यादा अब्जॉर्ब करती है, जहाँ से आपके सारे न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब होकर बाकी बॉडी पार्ट्स तक पहुँचते हैं. एंड दिस इज कॉल्ड एज असिमिलेशन. व्हाट इज असिमिलेशन? जहाँ पे बॉडी पार्ट्स अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज करती है टू गेट एनर्जी. एंड देन वी हैव द लार्ज इंटेस्टाइन. The large intestine is shorter than small intestine, but its diameter is greater than the diameter of small intestine. It is about 1.6 meters in length and 6 centimeter wide. Undigested and unabsorbed food along with water moves down into the upper parts of the large intestine known as the colon. It absorbs water and useful minerals from the watery mass of undigested food material. The undigested food material becomes semi-solid and is then called feces. Now it passes through the large intestine and is stored in the rectum, where it gets expelled out from the body through anus at periodic intervals. This process is known as digestion. अब आपका आता है large intestine. ये small intestine से छोटी होती है, but still it is called the large intestine because इसका जो diameter होता है it is greater than the small intestine. Around 1.6 सेंटीमीटर की लेंथ होती है, 6 सेंटीमीटर वाइड होता है. जितना भी आपका अनडाइजेस्टेड और जो आपकी बॉडी नहीं यूज करती है, जिसमें कोई न्यूट्रिएंट वैल्यू नहीं होती है, वो पार्ट यहाँ तक आता है. यहाँ की जो कोलन इसको कहा जाता है, जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन होती है, वी ऑफ्टन कॉल इट एज कोलन. और ये कोलन क्या करती है, पानी को अब्जॉर्ब कर लेती है, सारे अनडाइजेस्टेड पार्ट को, वाटर को, लिक्विड को अब्जॉर्ब कर लेती है, और फाइनली आपका बच जाता है हार्ड स्टूल विच इज कॉल्ड फेसेस. और ये आपकी बॉडी एक्सपेल आउट कर देती है बाय द लास्ट प्रोसेस विच इज digestion. And then we have certain digestive glands. Let's study about them. The organs which are associated with the alimentary canal and secrete digestive juices into it are called digestive glands. अब जो organs आपके alimentary canal में अलग अलग juices को secrete करती है, these are known as the digestive glands, जो digestion के process को help करते हैं, they help it. Now let's see what are these. These are as follows. Number one is the salivary glands, जो आपके mouth में होता है, oral cavity में. They are located in our mouth and secrete saliva which contains an enzyme amylase to break down the insoluble starch of the food into soluble sugar. अब saliva में amylase होता है जो आपके starch को soluble sugars में convert कर देता है. Number one. Second is the liver, which is very important. The liver is reddish brown colored gland situated on the right side just above the stomach. It is the largest gland in the body, weighing up to 3 kilograms in adult humans. It secretes a yellowish green colored liquid called bile. Bile is alkaline in nature and helps to neutralize the acidity of food leaving the stomach. It also helps in the breakdown of fats. Bile is temporarily stored into a hollow pear-shaped organ called gallbladder attached to the liver. अब आपका आता है liver, जो हेल्प करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में जब आपका काइन पहुंच जाता है तब. रेडिश ब्राउन कलर का लिवर होता है, ये आपका अराउंड ही आपका एडल्ट ह्यूमन बॉडी में 3 kgs तक वे कर सकता है. और ये जो जूस सिक्रीट करता है, इट इज येलोइश ग्रीन इन कलर विच वी कॉल एज बाइल जूस.
अब ये जो बाइल जूस होता है इट इज एल्कलाइन इन नेचर। आपका जो खाना स्टमक लीव करता है उसमें कुछ एसिडिटी अगर होती है या एसिड होता है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, फैट्स को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। और बाइल आपका टेम्परेरीली कहाँ पे स्टोर होता है, इट इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर जो आपके लिवर के साथ ही अटैच्ड होता है। एंड देन वी हैव द पैंक्रियाज। It is a leaf-shaped gland present below the stomach. It secretes pancreatic juice that acts on carbohydrates and proteins, changing them further into simpler forms. अब आपके पैंक्रियाटिक जो पैंक्रियाज होते हैं वो आपके पेट के नीचे प्रेजेंट होते हैं, काइंड ऑफ लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपका होता है, पैंक्रियाटिक जूस इस पे से निकलते हैं एंड दे एक्ट अपॉन द कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स और इनको ये सिंपलर फॉर्म्स में कन्वर्ट करते हैं सो दैट आपकी बॉडीज को अब्सॉर्ब कर सके। Thus, digestion of food is completed and carbohydrates are converted into glucose, proteins into amino acids and fats break down into fatty acids and glycerol. तो आप जो भी खाना खाते हो जिसमें प्रोटीन्स वगैरह होते हैं they further get converted into something else जो आपकी बॉडी यूटिलाइज कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल जो खाना आपका डाइजेस्ट होता है, जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो दे आर कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, प्रोटीन्स आपके अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट होते हैं और फिर आपके जो फैट्स होते हैं वो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होते हैं और ये यूजफुल कंपोनेंट्स होते हैं जो आपकी बॉडी यूज करती है और अब्सॉर्ब करती है। नाउ लेट्स एक्सप्लोर मोर। In humans, the gallbladder contains about 40 ml of fluids. तो जो human beings होते हैं उनके gall bladder में approximately 40 ml तक fluid stored रहता है। Now from the text, state true or false. अभी तक आपने जितनी भी चीजें पढ़ी उसकी बेसिस पे there are some questions being asked और इसके आंसर्स आपको खुद देने हैं। Now let's move ahead with the topic. Some ailments related to digestion. यानी कि कुछ बीमारियां जो digestion के साथ related होती हैं। Number 1 is belching. If you swallow air while eating, air collects into the stomach. It is then pushed back through the esophagus and quickly comes out of the stomach, out of the mouth. This is called belching or burping. 3 or 4 burps after a meal is considered normal, but more than it can be a sign of medical condition like ulcer. You must have noticed burping after drinking bubbly beverages like soft drinks. अब आपका आता है belching. खाना खाते हुए अगर हवा भी swallow हो जाती है तो उसके बाद जब पेट में आपका खाना जाता है हवा के साथ तो यही हवा इसोफेगस से वापस आपके माउथ के बाहर आ जाती है जिसको क्या बोला जाता है, बर्पिंग या बेल्चिंग, हिंदी में इसे डकार बोला जाता है। अब ये क्या है, खाना खाने के बाद 3 से 4 बार अगर बर्पिंग होती है तो इट इज कंसिडर्ड नॉर्मल, बट उससे ज्यादा बहुत फ्रीक्वेंटली हो रही है तो इट कुड बी अ साइन ऑफ अल्सर। अल्सर जो कि एक बहुत ही घातक बीमारी होती है, ये एक मेडिकल कंडीशन का भी साइन हो सकता है। 3 से 4 बार बर्पिंग फाइन, उससे ज्यादा होती है जस्ट विजिट अ डॉक्टर। और ये बबली बेवरेजेस पीते हो आप, उसके बाद भी आपको बर्पिंग आती है, उसका रीज़न क्या होता है, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो जैसे ही आप इन बेवरेजेस को कंज्यूम करते हो तो एयर ऑटोमेटिकली आपके पेट में जाती है जिसकी वजह से आपको बर्पिंग आने लग जाती है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड बेल्चिंग। सेकेंड एलिमेंट इज डायरिया. It is the condition of passing of 3 or more loose or liquid stools per day. It is a kind of infection caused by bacteria, viruses or parasites spread through contaminated food, unclean drinking water or as a result of poor hygiene. Due to diarrhea, a lot of fluid is lost by the body. This condition is called dehydration, which may prove fatal, particularly in young children. In this condition, the patient should be rehydrated by giving oral rehydration solution ORS, which is a mixture of clean water, salt and sugar. अब आपका आता है दूसरा कंडीशन विच इज डायरिया, इसको लूज मोशंस भी बोला जाता है। इसमें क्या होता है, आपको दिन में फ्रीक्वेंटली 2 से 3 बार या उससे भी ज्यादा लूज और लिक्विड स्टूल्स आ जाते हैं बिकॉज ऑफ एन नंबर ऑफ रीजंस, वायरसेस, बैक्टीरिया, पैरासाइट्स की वजह से ये हो सकता है। और बिकॉज बहुत सारा लिक्विड इसमें आपका रिलीज होता है तो इसकी वजह से आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो सकता है। और छोटे बच्चों के लिए तो ये फेटल, घातक, डेडली भी हो सकता है, डेथ भी हो सकती है छोटे बच्चों की। इसीलिए ऐसे पेशेंट्स को जिनको डायरिया हो चुका है, बहुत ज्यादा या कम भी हो रखा है, ORS जो आपने सुना भी होगा वो देना चाहिए, विच इज ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन। ये कुछ नहीं है, अगर आपके पास कोई सोल्यूशन का पैकेट नहीं भी है तो ये आप घर पे बना सकते हो। साफ पानी होना चाहिए, बॉईल कर लीजिए अगर कर सकते हैं तो, कूल डाउन करिए, नमक डालिए, चीनी डालिए, मिक्स करिए और उसको पी जाइए। ये भी आपका होममेड ORS सोल्यूशन बन सकता है, यू कैन हैव इट। टू अवॉइड डायरिया वी मस्ट
access to safe drinking water, keep our body and surroundings clean, take care of food hygiene and educate people about how infection spreads. आप किस तरीके से आप बच सकते हो? पानी आपका साफ होना चाहिए, खाना साफ होना चाहिए, कंटामिनेटेड फूड आपको नहीं कंज्यूम करना चाहिए, खाने का हाइजीन आपको मेंटेन रखना चाहिए एंड टेल पीपल हाउ कैन दिस इन्फेक्शन स्प्रेड सो दैट ये इन्फेक्शन ना फैले. थर्ड इज वॉमिटिंग. It is the forceful expulsion of stomach contents from the mouth through esophagus. It may be due to variety of circumstances, like it may follow by the intake of certain drugs or by traveling sickness, or it may be a symptom of a disease. तो vomiting होती है. vomiting यानी कि उल्टी, या तो आपके पेट में ऑलरेडी जो खाना है वो आपकी स्टमक नहीं डाइजेस्ट कर पा रही है, आपका स्टमक इतना वीक हो चुका है कि डाइजेस्टिव जूसेस वगैरह रिलीज ही नहीं कर रहा है, तो फोर्सफुली वो एसोफेगस से वापस पेट से बाहर आ जाता है क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है. किसी किसी को मोशन सिकनेस होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा पहाड़ी इलाकों पे बहुत गोल 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 घुमावदार रास्ते होते हैं, वहाँ पर भी कुछ लोगों को वॉमिटिंग आ जाती है, या फिर ये किसी सिकनेस या फिर किसी डिजीज़ का भी सिम्टम हो सकता है. देन वी हैव हीट बर्न. It is a kind of discomfort or burning sensation caused in the chest. It is due to the contents of the stomach traveling upwards into the esophagus or lower part of the esophagus. The esophagus cannot withstand acid and gets irritated when acid from the stomach travels into it. अब heat burn कब होता है? जब आप बहुत ज़्यादा बाहर का खाना खा लेते हो या बहुत ज़्यादा ऑयली बाहर का बहुत ज़्यादा कंजम्पशन आपकी हो जाती है, तो पेट में क्या होता है, जो एसिड्स होते हैं वो वापस से आपके esophagus में ऊपर की तरफ आने लग जाते हैं. जैसे ही, क्योंकि आपका जो एसोफेगस होता है वो सॉफ्ट टिश्यू मस्कुलर सिस्टम होता है, एसिड्स को नहीं विथस्टैंड कर सकता है, ना टॉलरेट कर सकता है. जैसे ही थोड़ा सा भी एसिड ऊपर आता है उसमें इरिटेशन और हीट बर्न होने लग जाता है. कभी कभी आपको जलन सी महसूस होती है अंदर. इट हैपेंस बिकॉज एसिड रिफ्लक्स होने लग जाता है, एसोफेगस की तरफ वापस एसिड आने लग जाता है. देन वी हैव अपेंडिक्स. The large intestine has a tiny tube with closed end called the appendix. It is a part of the digestive tract which does not seem to perform any function in our body. But if it gets infected, then it causes problem and needs to be removed. अब आपकी large intestine जो होती है उसमें tiny tubes होती हैं. It is enclosed with something called appendix. कोई function ये digestion में नहीं करता है, but अगर इसमें कोई infection हो जाता है तो उसको remove करना important होता है. Now let's see the digestion in grass-eating animals. Grass-eating animals have a very special way of digesting their food. Animals like goat, sheep, cow and buffalo cannot digest the food they eat in one go because they do not have the enzymes to break down cellulose, which is a type of carbohydrate present in the cell wall of the plants. These animals chew half-digested food and are called ruminants. They bring back the swallowed food to chew it again. This process is called rumination and the swallowed food is called cud. All ruminants are herbivores. अब आपके जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स, फॉर एग्जाम्पल आपके बफेलोज, ये सारी जितने भी आपके जानवर होते हैं एक बार में ये खाना नहीं कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, उसके बाद हाफ डाइजेस्टेड या हाफ च्यूड फूड को अंदर लेते हैं, उसके बाद वापस अपने माउथ में थोड़ी देर के बाद लेकर आते हैं और फिर उसको कंज्यूम करके अंदर लेकर जाते हैं पेट में, एंड फाइनली देन इट गेट्स डाइजेस्टेड. रीजन क्या होता है? क्योंकि इनके पास वो एंजाइम्स नहीं होते हैं विच कैन ब्रेक डाउन द सेल्यूलोज विच इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो लीव्स में या लीव की वॉल्स में या प्लांट की वॉल्स में प्रेजेंट होता है. हेंस दीज काइंड ऑफ एनिमल्स आर नोन एज रेमिनेंट्स. ये पूरा जो प्रोसेस होता है, हाफ डाइजेस्टेड फूड अंदर फिर बाहर फिर उसको च्यू करा फिर पेट तक लेकर गए, इज नोन एज rumination, and the half digested food is known as cud. And all ruminants are herbivores, यानी कि सारे के सारे ruminants सिर्फ और सिर्फ plants ही कंज्यूम करते हैं. Now let's see how the digestion happens in ruminants. All the ruminants have big chewing teeth and powerful jaw muscles so that they can chew their food properly. जितने भी ruminants होते हैं इनके दांत जो होते हैं बहुत पावरफुल होते हैं, जॉ बहुत पावरफुल होते हैं ताकि आसानी से अपना खाना चबा सकें. Stomach of ruminants is divided into 4 compartments or chambers. These are rumen, reticulum, omasum and abomasum. अब आपके स्टमक जो होते हैं नॉर्मल जो आपके ruminants में होते हैं, जैसे बफेलो, गोट, शीप, 4 चेम्बर्स में इनके स्टमक डिवाइड होते हैं. These are rumen, reticulum, omasum and abomasum. The half-chewed grass is swallowed and it first goes from mouth to rumen, the largest of the 4 compartments. अब चारों में से जो पहला कंपार्टमेंट है rumen, खाना जैसे ही swallow होता है सबसे पहले वहां जाता है.
Protozoa and bacteria present in the rumen break down the cellulose present in grass. अब यहीं पर जो खाना होता है उसमें प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया रुmen में प्रेजेंट होते हैं और वो खाने को सेल्यूलोज को ब्रेक डाउन करना शुरू कर देते हैं. Then in reticulum, the half-digested food is stored from where it is sent back to the mouth as cud to be chewed again. This action is known as ruminating. फिर दूसरे चेम्बर में जाता है which is reticulum. Reticulum में आधा digested food आपका stored रहता है जिसे cud बोलते हैं और reticulum से ही वापस mouth तक ये खाना जाता है ताकि वो दोबारा chew हो सके and this process is known as ruminating. Then the chewed matter is now swallowed for the second time और दूसरी बार फिर completely खाना चबा के ये stomach तक जाता है. By passing the first two chambers, it enters the third chamber, the omasum, where it is broken down into smaller pieces and excess water is absorbed. पहले दो चेम्बर से निकल चुका है, तीसरे में जाता है, उसके बाद ओमेसम सेकेंड टाइम में जाता है और यहाँ पर छोटे छोटे पीसेस में फूड पार्टिकल्स कन्वर्ट होते हैं और सारा का सारा पानी खाने में से अब्जॉर्ब हो जाता है. And at last, it enters the fourth chamber, omasum, which is the true stomach because here enzymes act upon the food and digestion progresses further. अब आखिरी में जो आपका आता है omasum, ये मेन पार्ट होता है क्योंकि सारे एंजाइम्स यहीं प्रेजेंट होते हैं, खाने के ऊपर एक्ट अपॉन करते हैं और डाइजेशन के प्रोसेस को और भी ज्यादा आगे बढ़ा देते हैं. So far we have learnt about animals which possess the digestive system, but there are many small organisms which do not have a mouth and a digestive system. One such organism is amoeba. तो ये सारे जो आपने animals का digestion का process देखा, इनके पास mouth और proper digestive system होता है. But now we are going to study about an organism which is amoeba, जिसके पास ना mouth होता है, ना हाथ होता है, ना पैर होता है. अब देखते हैं ये कैसे consume करते हैं and ingest करते हैं. Feeding and digestion in amoeba. Amoeba is a unicellular microscopic organism found in pond water. An amoeba has a cell membrane, a rounded dense nucleus and many small bubble-like vacuoles. Vacuoles are tiny cavities filled with fluid in its cytoplasm. For movement and for capturing food, amoeba constantly changes its shape and position. The amoeba pushes out one or more finger-like projections called pseudopodia or false feet for movement and to capture food. Amoeba is an omnivore feeding on both plants and animals. Its diet includes microscopic plants, bacteria, minute algae, microscopic animals and even dead organic matters. तो amoeba एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है. पॉन्ड वाटर के आसपास आपको ये दिखाई देगा, सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है. किस तरीके से ये खाना कंज्यूम करते हैं, ये आपका एक अमीबा है. अब अमीबा के पास ये जैसे ही फूड पार्टिकल आया वैसे ही ये क्या करता है, अपने फॉल्स फीट को एक्सटेंड करना स्टार्ट कर देता है. एक्सटेंड करता है और जैसे ही खाना अंदर एनगल्फ हो जाता है उसके न्यूट्रिशन को ये अब्जॉर्ब करने लग जाता है. द मोमेंट सारे का सारा न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब कर लेता है उसके बाद आता है लास्ट पार्ट इजेक्शन का, बाहर फेंकने का. बाहर भी ये सिमिलर मैनर में ही फेंकता है. धीरे धीरे क्या करता है, फॉल्स फीड अपने बनाता है और जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको बाहर की तरफ एक्सपेल आउट कर देता है. Amoeba takes in food with the help of pseudopodia. When there is any food particle around amoeba, it pushes out pseudopodia and surrounds it. The food is ingested at the point where it comes in contact with the cell surface with the help of pseudopodia. The food is then acted upon by digestive juices in food vacuoles and gradually the digested food is absorbed. The absorbed substances are used for growth, maintenance and multiplication. The undigested residue of the food is expelled outside by the vacuole. तो इसी तरीके से pseudopodia मतलब क्या होता है, pseudopodia में pseudo का मतलब होता है false और podia का मतलब होता है feet, यानी कि झूठे पैर, एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करते हैं. खाना आसपास आता है, एनगल्फ कर लेता है, फॉल्स फीड बाहर निकालता है, एनगल्फ करता है, कंज्यूम करता है. वैक्यूल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं और वैक्यूल्स की मदद से ही जो अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है उसको expel out कर देता है. That is how amoeba, which is a unicellular organism with no mouth or any kind of organs, इस तरीके से ये खाना consume करते हैं. Now let's see the highlighted words in the chapter. Holozoic, the process of taking in complex solid food. Pseudopodia, the finger-like projections on the surface of amoeba for movement and feeding. Cilia, the thread-like structures on the body of paramecium used for movement and feeding. Papillae, small structures on the upper surface of the tongue that makes it rough. Dentition, the total number of teeth present in an organism. Then we have peristalsis, a type of movement in the muscles of esophagus and intestine that moves food to different parts.
Chyme, a semi-liquid or fluid mass of partially digested food formed in the stomach. Villi, the tiny finger-like projections on the wall of the small intestine which increases the surface area for absorption of nutrients. Bile, a yellowish-green liquid secreted by liver and stored in gallbladder. Ruminants, herbivores that bring back half-digested food into their mouth to chew it again. So these were some terms जो आपने इस चैप्टर में देखी. फॉर एग्जाम्पल होलोजोइक, जिसमें आप सॉलिड कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल का इंटेक करते हो. सूडोपोडी, द फॉल्स फीट, जो अमीबा एक्सटेंड आउट करता है टू कंज्यूम इट्स फूड. देन यू हैव सिलिया, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं पैरामीशियम में, यूज्ड फॉर फीडिंग. देन यू हैव काइम, अ सेमी फ्लूइड स्ट्रक्चर, जो आपका खाना हाफ डाइजेस्ट होता है स्टमक से, जो स्मॉल इंटेस्टाइन तक जाता है. देन यू हैव बाइल, द जूस सिक्रीटेड फ्रॉम द लिवर इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर द डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम योर फूड पार्टिकल्स. देन यू हैव रमिनेंट्स, जो आपके हर्बीवोर्स एनिमल्स होते हैं, जो प्लांट्स कंज्यूम करते हैं, उनको रमिनेंट्स कहा जाता है. Summing up, all animals depend directly or indirectly on plants for their food requirements. The intake of complex solid food particles and its breakdown is called holozoic nutrition. Holozoic nutrition involves digestion, absorption, assimilation and ingestion. Human digestive system includes alimentary canal and digestive glands. Teeth help in a breakdown of food particle into smaller pieces. The stomach stores the food and helps in digestion. Absorption or digested food takes place in a small intestine and large intestine. The liver is the largest gland in the body. Diarrhea is the condition of passing of 3 or more liquid stools per day. Grass-eating animals have 4-chambered stomach and often ruminate in order to digest food. Amoeba pushes out 1 or more finger-like projections called pseudopodia for movement and to capture food. तो आपके खाने का जितना भी न्यूट्रिशन होता है इन एनिमल्स, प्लांट्स का आप पढ़ चुके हैं. ह्यूमन बींग्स का आपने इस चैप्टर में काफ़ी डिटेल में पढ़ा. जो आपका होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, इसमें 5 स्टेप्स आते हैं, विच इज इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन एंड देन इजेशन. देन यू हैव डायरिया. डायरिया आपका एक ऐसा कंडीशन होता है वेर इन यू पास स्टूल पर डे विच इज लिक्विड. 2 से 3 बार आप ये स्टोर रिलीज कर देते हो. एंड देन यू हैव अमीबा विच पुशेज आउट 1 or more finger-like projections, जिनको सूडोपोडिया कहा जाता है, to consume its food. So students, with this we come to the end of this chapter. I hope आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी. Go through this chapter thoroughly, read it, revise it, memorize it, and all the exercise questions, please do it yourself.